ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا میزبان سید اکمل پیرا مرادی۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ اسرائیل کے فلسطین میں توسیع پسندانہ اقدامات عالمی قوانین کے خلاف ہیں۔ جنرل سیکریٹری اقوام متحدہ۔ اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک، نیو یارک میں سکھوں نے ہندوستانی قونصل خانے کا گھیراؤ کر لیا۔ IOC جرمنی نے احتجاج کرنے والے کسانوں کو 1 کروڑ روپے کی مالی مدد کا اعلان کیا۔ بنگال، یوپی اور گجرات نہیں وفاقی ڈھانچے کو سبوتاژ نہیں کر سکتا۔ جھوٹ اور جھوٹے پروپیگنڈے سے کوئی مشن کامیاب نہیں ہو سکتا، راہل پرینکا گاندھی۔ وزیر اعظم تینوں سیاہ قوانین ختم کرنے کا اعلان کریں، کانگریس۔ نوئیڈا میں فلم سٹی کو لے کر بیان بازی تیز، ادھے ٹھاکرے بولے یہاں دھمکی نہیں چلے گی۔ مودی حکومت سے کسانوں کی بات چیت غیر مختتم۔ طوفانی انتخابی مہم کے باوجود صرف 42% رائے دہی۔ امیت شاہ کے ریمارکس پر نظام خاندان کا اعتراض۔ تلنگانہ کی حیدرآباد بیجاپور شاہراہ پر سڑک حادثہ، ایک ہی خاندان کے 8 افراد ہلاک۔ 2 بڑے بین ریاستی سرخ سندل کی لکڑیوں کے اسمگلر گرفتار، 4 ٹن سرخ سندل کی لکڑیاں اور 5 گاڑیاں ضبط۔ SP کڑپا امبو راجن کی پریس کانفرنس۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ اسرائیل کے فلسطین میں توسیع پسندانہ اقدامات عالمی قوانین کے خلاف ہیں۔ جنرل سیکریٹری اقوام متحدہ۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو نے متنبہ کیا کہ اسرائیل کی فلسطینی سرزمین پر تعمیرات اور توسیع عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہیں، جس سے حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے۔ اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک، نیو یارک میں سکھوں نے ہندوستانی قونصل خانے کا گھیراؤ کر لیا۔ ہندوستان میں ناروا سلوک کے خلاف سکھوں نے ہندوستانی قونصل خانے کا گھیراؤ کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف نیو یارک میں سکھوں نے ہندوستانی قونصل خانے کا گھیراؤ کیا۔ مظاہرین نے تمام رکاوٹیں توڑ کر قونصلیٹ کا گھیراؤ کیا، جس کی وجہ سے قونصل خانے کا عملہ محصور ہو گیا۔ مظاہرین نے بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ پولیس نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور انہیں اپنے مقررہ جگہ واپس جانے کی اپیل کی۔ IOC جرمنی نے احتجاج کرنے والے کسانوں کو 1 کروڑ روپے کی مالی مدد کا اعلان کیا۔ انڈین اوورسیز کانگریس جرمنی نے منگل کو نئے متعارف کرائے گئے زراعت کے قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کو 1 کروڑ روپے کی مالی مدد کا اعلان کیا۔ جرمنی کے صدر نے کہا، IOC ایک بیان میں کہا کہ اس بات پر تبادلہ خیال کیا گیا کہ بھارت میں احتجاج کرنے والے کسانوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ بنگال، یوپی اور گجرات نہیں وفاقی ڈھانچے کو سبوتاژ نہیں کر سکتا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی نے بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے خلاف سخت بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بنگال گجرات یا یوپی نہیں ہے، بنگال بنگال ہے۔ کچھ بیرونی گنڈے آ رہے ہیں، لیکن جان لو اب وفاقی ڈھانچے کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ ممتا بنرجی نے PM سے PM کیئرز فنڈز کا حساب بھی مانگا ہے۔ ممتا بنرجی نے اپنے تقریروں پر وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی نشانہ بنایا۔ ممتا بنرجی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم آئین کے مطابق چلتے ہیں۔ ریاستی حکومت ایک عملدار آمد کرنے والی اتھارٹی ہے، تو کیا ہمیں بھی BJP کے ذہن پر عمل کرنا چاہیے؟ جب ریاست میں پہلے سے ہی کوئی اسکیم چل رہی ہے تو پھر ہم اس طرح کا منصوبہ کیوں چلائیں؟ کیونکہ BJP کہہ رہی ہے انہیں فنڈز کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ پوری ریاستی حکومت کی ٹیکس کی رقم ہے۔ ہم اپنی اسکیم کو 100% فنڈز دیتے ہیں، لیکن ریاستی حکومت کو ان کے منصوبوں کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ ممتا بنرجی نے سخت لہجے میں کہا کہ بنگال گجرات نہیں، نہ ہی یوپی ہے، بنگال بنگال ہے۔
झूठ और झूठे प्रोपेगेंडे से कोई मिशन कामयाब नहीं हो सकता, राहुल प्रियंका गांधी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रे ने हुकूमत पर यह कहते हुए हमला किया कि वो झूठ और झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर काम करती है, इसलिए किसान तहरीक को खत्म करने का कोई मिशन कामयाब नहीं हो सकता। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, किसान की आमदनी दुगनी हो गई, दोस्तों की आमदनी चुगनी और किसान की आमदनी हो गई निफ्स। झूठ लूट मार सूट बूट की सरकार। इस ट्वीट के साथ ही मिस्टर गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें पुलिस किसानों पर आंसू गैस और लाठी बरसा रही है और पानी की बुझारें करके और खारदार बैरिकेड्स लगाकर मुश्ताल किसानों को रोक रही है। मिस्टर प्रियंका गांधी ने कहा, जब हुकूमत का मकसद सिर्फ मुनाफिकत और झूठा प्रोपेगेंडा हो तो मिशन नाकाम ही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में खवातीन के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी हुकूमत का मिशन शक्ति नाकाम हो गया। एक माह बाद उस लड़की को जला देने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा रही है, जराइम बढ़ते जा रहे हैं। वजीर आजम तीनों सियाह कवानीन खत्म करने का ऐलान करें, कांग्रेस। मरकजी हुकूमत की जानिब से किसान तंजीमों के साथ मौजूदा बातचीत से कबल मंगल को कांग्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से ज़राअत से मुताल्लिक तीनों निकाला कवानीन रद्द करने और किसानों के खिलाफ मुजाहिरीन दर्ज केस वापस लेने का मुतालबा किया। पार्टी के चीफ तर्जुमान रणदीप सरजेवाला ने भी कहा है कि हुकूमत तमाम किसान तंजीमों के साथ खुलकर बातचीत करे और मामले को किसी तासुब और इम्तियाज के बगैर हल करे। काबिल जिक्र यह है कि मरकजी हुकूमत मंगल की सह पहर के बाद किसान तंजीमों से बात करने जा रही है। किसानों की एक बड़ी तादाद तीनों ज़रई कवानीन के खिलाफ एक हफ्ते से दिल्ली के करीब एहतजाज कर रही है। सरजेवाला ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि देर आए दुरुस्त आए, पिछले एक हफ्ते से लाखों किसान सड़कों पर हैं, लेकिन मुतकब्बिर मोदी हुकूमत ने उनसे बात करने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब कम से कम बात करने की दावत दी है। हम कहते हैं कि अगर हुकूमत ने बातचीत के दरवाजे खोल दिए हैं तो अपना जहन खोलें और तासुब से बात न करें। उन्होंने कहा है कि हमारा मुतालबा है कि तमाम किसान तंजीमों को बातचीत के लिए बुलाया जाए ताकि काश्तकारी के तमाम मसाइल को हुकूमत के सामने रखकर हल किया जा सके। सरजेवाला ने जोर दिया कि वजीर आजम को आज तीनों काले कवानीन को मुअत्तल करने और उसका ऐलान करने का फैसला करना चाहिए। हजारों किसानों को दायरे मुकदमात को गैर मशरूत वापस लेने का ऐलान करें। पराली को जलाने के सिलसिले में दायर मुकदमात को भी वापस लिया जाए और पराली पर जुर्माना आयद करने के ऑर्डिनेंस को भी बहाल किया जाए। नोएडा में फिल्म सिटी को लेकर बयानबाजी तेज, उदय ठाकरे बोले यहां धमकी नहीं चलेगी। नोएडा में फिल्म सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के वजीर आला उदय ठाकरे के दरमियान बयानबाजी तेज हो गई। बता दें कि यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज मुंबई के दौरे पर हैं और वो यहां फिल्म सिटी के सरमायाकारों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। हालांकि महाराष्ट्र के वजीर आला उदय ठाकरे ने इस मीटिंग को लेकर एतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि मुसाबिका आराई होनी अच्छी बात है, लेकिन चीख कर धमकी देकर कोई यहाँ की सनात को लेकर जाना चाहेगा तो मैं होने नहीं दूंगा। मोदी हुकूमत से किसानों की बातचीत गैर मुख्ततम। मोदी हुकूमत से एहतजाजी किसानों की बातचीत गैर मुख्ततम रही। किसानों के एहतजाज की कनाडा और बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट ने हिमायत की है। वजीर आजम कनाडा जस्टिन ट्रूडो की तरफ से हिंदुस्तान में ज़रई इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों की हिमायत करने पर मोदी हुकूमत ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उसे गैर जरूरी करार दिया है। वजीर आजम कनाडा के बयान के बाद हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान सफारती कशीदगी पैदा हो गई है। कनाडा में हिंदुस्तान के शहरियों खासकर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद आबाद है। वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि वजीर आजम कनाडा जस्टिन के अलावा कनाडा के बास कायदीन को हिंदुस्तानी किसानों से मुतालिक गलत मालूमात फराहम हुई हैं, इसलिए वो लोग तबसरा कर रहे हैं हिंदुस्तान के दाखिली मामले में कनाडा की मुदाखलत गैर जरूरी है। तूफानी इंतखाबी मुहिम के बावजूद सिर्फ 42% राय दही।
बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातों और उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद की जा चुकी है और 4 दिसंबर को राय शुमारी के बाद ही इस बात का फैसला किया जा सकेगा कि शहरियों ने किस सियासी जमात या उम्मीदवार को पसंद किया है। शहर में बल्दी इंतखाबात के लिए हुई राय दही के दौरान चंद एक नाखुशगवार वाकयात और झड़पों की मजमूई तौर पर वोटिंग पुरअमन रही। तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से शाम 6 बजे तक जारी रहने वाले राय दही के फीसद मुतालिक फराहम की गई इब्तदाई इतलात के मुताबिक GHMC इंतखाबात के लिए हुई राय दही में 40% वोटों का इस्तेमाल किया गया। अमित शाह के रिमार्क्स पर निजाम खानदान का एतराज। हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान के अरकान खानदान ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के उस बयान पर सख्त एतराज किया जिसमें उन्होंने हैदराबाद के कल्चर को निजाम कल्चर करार दिया और सियासी कायदीन से कहा कि वह सियासी मफादात के लिए निजाम के बारे में हकाइक को मस्क करना बंद करें। निजाम हफ्तुम के पोते नजफ अली खान ने कहा कि जब भी इंतखाबात मुनाकिद होते हैं सियासतदानों की जानिब से दानिस्ता तौर पर आमदन नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर के इमेज को दागदार बनाने की कोशिश की जा रही है और कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा करना वोट हासिल करने के लिए एक घटिया कोशिश है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद के नाम को तब्दील करने या रियासत को निज़ाम कल्चर से आज़ाद करने की बातें एक धोखा और फरेब के सिवा और कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें करने वाले सियासतदान गंगा जमनी तहजीब को बदल नहीं सकते जो सदियों से हैदराबाद के अवाम के कल्चर का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि निज़ाम तमाम मजहब का एहतराम करते थे और उनके दौर हुकूमत में इनमें इत्तेहाद पैदा किया था और उनके दौर में अमन व सुकून था और उनकी हुकूमत सेकुलर के लिए जानी जाती थी। नजफ अली खान ने कहा कि 1940 में निज़ाम के दौर में हैदराबाद की हालत ज्यादातर मगरबी ममालिक की हालत से बेहतर थी। उन्होंने जो बड़े और गिरान कदर अतियात दिए हैं वो बेमिसाल हैं, किसी और हुक्मरान ने ऐसे अतियात नहीं दिए। अपनी जाती जेब से निम्स अस्पताल तामीर करवाने वाले हुक्मरान को एक लुटेरा कहना ये उस्मान अली खान की बेअदबी करना और उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। निजाम के नाम को धब्बा लगाने की कोशिश करने वालों से उन्होंने पूछा है कि खुद उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया है। नजफ अली खान ने कहा कि निजाम ने नेशनल डिफेंस में 5 टन सोना अतिया दिया था। तमाम जातों और कम्युनिटीज को दिए गए उनके तमाम गिरान कदर अतियात उनके सेकुलर इमेज की तस्दीक होती है। उन्होंने कहा है कि सियासत के मियारात में इन्हदाद आ गया है क्योंकि कई सियासतदानों को खुद उनके मुल्क की तारीख मालूम नहीं है। अमित शाह ने इतवार को यहाँ एक जलसे आम में कहा था कि GMC इंतखाबात में अगर बीजेपी को कामयाबी मिली तो वह हैदराबाद में निजाम कल्चर का खात्मा करेगी। तेलंगाना की हैदराबाद बीजापुर शाहराह पर सड़क हादसा, एक ही खानदान के 8 अफराद हलाक। तेलंगाना की हैदराबाद बीजापुर शाहराह पर चवरला मंडल के मलकापुर गेट के करीब पेश आए सड़क हादसे में 8 अफराद जान बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह पेश आया। 2 बड़े बैन रियासती सुर्ख सुंदल की लकड़ियों के स्मगलर गिरफ्तार, 4 टन सुर्ख सुंदल की लकड़ियां और 5 गाड़ियां जब्त। SP कड़पा अंबुराजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे नुमाइंदे मुतहर अली खान की रिपोर्ट। మర్డర్స్ అండ్ ఒక అటెంప్ట్ ఆఫ్ మర్డర్ లో ఇతను ముద్దాయిగా ఉన్నాడు. విచారిస్తే ఇతను బెంగళూరుకు చెందిన ఖలీల్ మరియు అఫ్రోజ్ ఇద్దరు చెప్పగా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఒక 30 లాగ్స్ ని జస్ట్ ఒక గంట ముందే పంపించినట్టు ఇమీడియట్ గా జిల్లా అంతా అలర్ట్ చేస్తే ఈ ఖలీల్ మరియు అఫ్రోజ్ ని అలాంగ్ విత్ ఇంకా ఒక ముగ్గురుతోటి సేమ్ ఒక 1 కిలోమీటర్ అవతల 35 లాగ్స్ అండ్ ఒక లారీతో పట్టుకోవడం జరిగింది. మళ్ళీ ఈ ఖలీల్ అండ్ అఫ్రోజ్ ని విచారిస్తే వీళ్ళు ఇంకా 2 గ్యాంగ్స్ తోటి సంబంధాలు పెట్టుకుంటూ ఇంకా కొన్ని రెడ్ శాండర్ స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నట్టు తెలియవచ్చింది. దాని మేరకు ఫస్ట్ గ్యాంగ్ తప్పట్ట సురేందర్ రెడ్డి అని ఇతన్ని కన్నయ్యక్క పాండ్ నందలూరు మండలంలో 6 మందితో పికప్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 10 రెడ్ శాండర్స్ లాగ్స్ I-20 కార్ ని స్వాధీనం చేయడం జరిగింది. ఇంకొక గ్యాంగ్ చీకటి చంద్రశేఖర్
వాళ్ళ దగ్గర అండ్ ఆయనతో పాటు ఒక 5 మంది, సో టోటలీ 6 మంది. వీళ్ళ దగ్గర నుంచి 10 లాగ్స్, ఎటిఐస్ కార్ ఒకటి స్వాధీనం చేయడం జరిగింది. ఇంకొక గ్యాంగ్ కన్నపర్తి నాగేశ్వరరావు, ఇతను ప్లస్ ఇతను గ్యాంగ్ ఒక 5 మంది. వీళ్ళ దగ్గర నుంచి 8 లాగ్స్, 6 మంది పట్టుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇంకొకటి బొమ్మ సుబ్బారెడ్డి అని, అతని దగ్గర ఒక 30 లాగులు, అతను కాకుండా ఇంకా 2 ప్లస్ టాటా మ్యాజిక్ ని స్వాధీనం చేయడం జరిగింది. మొత్తానికి ఈరోజు టోటలీ 30 మందిని అరెస్ట్ చేయడం. బెంగళూరుకి చెందిన 2 ఇంటర్స్టేట్ స్మగ్లర్స్ ఖలీల్ అఫ్రోజ్ ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేయడం. అది కాకుండా 4 టన్స్ విలువైన ఎర్రచందన లాగ్స్, అదేవిధంగా 5 వెహికల్, ఒక లారీ, 4 4 వీలర్స్ ని స్వాధీనం చేసి ఈ రోజు వీళ్ళందరినీ కూడా రిమాండ్కి పెడుతున్నాము. వీటిల్లో 6 మంది, అంటే దాదాపు 6 మంది రిపీటెడ్ గా ఉన్న అఫెండర్స్. వీళ్ళ మీద పీడీ యాక్ట్లు తయారు చేస్తున్నాము. ఇది కాకుండా ఇంకొక 10 మందికి వీళ్ళ ఒక నేర చరిత్రని కూడా ఆరాధిస్తున్నది జరుగుతున్నాయి. వీళ్ళ మీద కూడా కఠిన చర్యల్ని తీసుకోబడుతుంది అనేది కూడా, అంటే ఎక్స్టర్మినేషన్, జిల్లా బహిష్కరించడం చేయడం కూడా జరుగుతుంది అని చెప్పడం జరుగుతున్నాయి. అదేవిధంగా ప్రజలకి రెడ్ శాండర్స్ చేస్తున్న వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉంటే డయల్ 100 ద్వారా కానీ ఆర్ నా నంబర్ 9440796900 ఆ నంబర్కి మీరు మెసేజ్గా పెట్టగలిగితే మీ యొక్క ఐడెంటిటీని కాన్ఫిడెన్షియల్గా పెట్టుకుంటూ ఖచ్చితంగా మన జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఈ ఎర్రచందనాన్ని కాపాడుతూ ప్లస్ వీళ్ళ మీద ఎవరైతే స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నారో వీళ్ళ మీద కఠిన చర్యలు పీడీ యాక్టుల ద్వారా, అదేవిధంగా ఎక్స్టర్మినేషన్ అలాంటి యాక్టుల ద్వారా ఖచ్చితంగా కఠిన చర్యలు తీసుకోబడుతుందని తెలియవచ్చు. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఆపరేషన్స్లో అడిషనల్ ఎస్పీ ఓఎస్డి గారు మరియు డిఎస్పీ మైదుపూర్, డిఎస్పీ రాజంపేట, అదేవిధంగా వాళ్ళ సిబ్బందులు, సిఐలు అందరూ కూడా చాలా బాగా పనిచేశారు. వీళ్ళకు కూడా సన్మానం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్స్. ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें. कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ. अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. शब बखैर. तुम खासुल खास हो, आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो, तुम ही हो मोहम्मद